اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا اب ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ اب یہ جو ملکوں کا کانسیپٹ تھا یا ریجن کا کانسیپٹ تھا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ گلوبلائزیشن ہے، پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ بآسانی انٹریکٹ کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، آئیڈیاز شیئر کر سکتی ہے۔ آپ کسی بھی ریجن، کسی بھی ملک کی اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، زبان سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب یہ جو پرانا نظام تھا، مختلف علاقے تھے، مختلف ملک تھے، وہاں پہ مختلف پاورز تھیں جو کنٹرول کرتی تھی۔ اب لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اب نیا راستہ ہے۔ اب جس کے پاس سکلز ہیں، جس کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ اس دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے۔ تو دنیا کے ساتھ انٹریکٹ ضرور کریں، کیونکہ جب آپ انٹریکشن کریں گے تو سب سے مزیدار چیز جو آپ کو ملے گی وہ نالج ملے گا۔ ہر زبان کے اندر نالج ہے، ہر ریجن میں نالج ہے، ہر ریجن کے اندر اچھے لوگ رہتے ہیں۔ دنیا میں بیسیکلی اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ٹربل میکر جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن وہ ٹربل زیادہ کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف لوگ صرف سپرمیسی کے لیے ایک فسطائیت کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کو ڈرائیو کرنے کے لیے کیا ہے، جنگیں پلان کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، یا سیریا کی جنگ ہے، یا ایران کی جو اب بڑھتی جا رہی ہے، آئے دن جناب مختلف ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کانکر کر رہے ہیں، اپنے پرانے بدلے اتار رہے ہیں۔ ڈرے اس وقت سے، آپ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جنگ آپ اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ جنگ پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اسی طرح آگ پہ قابو نہ پایا جائے تو آگ جو ہوتی ہے گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، جنگلوں کو جلا دیتی ہے۔ تو یہ وقت ہے، انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بیلنس بات کریں، سیدھی بات کریں۔ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالے یا اس کو ڈرائیو کرے۔ اپنے طور پہ جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کائنڈ ورڈ کا استعمال کریں، شیئر اینڈ کیئر کا ایٹیٹیوڈ اپنائیں، اخلاق سے نیچے مت اتریں، بلیز مت کریں، کیونکہ یہ جو بلیز کرنا ہوتا ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں، ہمارے گھروں کے اندر جب تانا بازی شروع ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، مسئلے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اب جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ کو ہر رنگ دیا ہے، ہر خوشبو دی ہے، ہر ذائقہ دیا ہے، نیچر دی ہے، تو پھر اس کے اندر رنگ میں بھنگ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک چیز کا بڑا عجیب سا ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں اپنوں میں کی جاتی ہیں، ہم کراس میرجز نہیں کرتے۔ جی، ہم تو خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کراس میرجز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک انٹریکشن پیدا کرتی ہیں، سوسائٹی کو ایک دوسرے کے اندر ایمرج ہوتی ہے، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جناب ان کی ڈبہ بندیاں کر دیتے ہیں، ان کو اپنے بلاکس بنا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کسی بلاک کا حصہ بنتے ہیں تو آپ لوزر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹیریٹری کم ہو جاتی ہے۔ اپنی ٹیریٹری کو کبھی کم نہ ہونے دیں۔
बच्चा रोता है, कोई चीज मांगता है, डिमांड करता है, वो प्रोटेस्ट करता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी जो अनजस्टिस होता है या कोई हमें हमारी जिंदगी को ड्राइव करता है, तो एक वक्त आता है हम चीख पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, चिल्ला उठते हैं। प्रोटेस्ट करें, लेकिन अपने काम के अंदर अपने काम को इतना अच्छा कर लें कि दूसरे मजबूर हो जाए, आप उनकी जरूरत बन जाएं। अपने काम को इतना अच्छा कर लें कि दूसरे मजबूर हो जाए, आप उनकी जरूरत बन जाएं। डिमांडिंग मत हो, गिवर हो। उससे क्या होता है, आपके इर्द गिर्द आपका सर्कल बढ़ता है। लेकिन अगर आप डिमांडिंग होते हैं तो लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये वक्त है, इस वक्त के अंदर आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये बेहतरी कहां से शुरू होती है? ये आपके अपने घर से शुरू होती है, अपने लव वन से शुरू होती है। फिर ये जाते जाते जनाब आपके मोहल्ले में जाती है, आपके टाउन में जाती है, आपके शहर में जाती है, आपके मुल्क में जाती है, और फिर आप समुंदर पार करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं, और ये कनेक्शन वहां तक लेके जाते हैं। आपको पता है, कई लोग जो हैं वो कई सालों से बेचारे ओवरसीज में रह रहे हैं, और वहां पे उन लोगों के साथ इमर्ज हुए हैं। और कई दफा क्या होता है कि हमारे यहाँ, क्योंकि मीडिया जो है लोगों को ड्राइव करता है, वो लोगों के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाता है, और लोग ये एज्यूम करके बैठ जाते हैं कि नहीं यार, इस रीजन के अंदर ये रीजन तो ट्रबल मेकर है, यहाँ तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब आप फिजिकली उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा हेरिटेज क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, तो फिर लोगों को पता है नहीं यार, मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया तफरका कायम करता है, मीडिया तोड़ता है। तो इस मीडिया की इस टेलीपैथी को, इस हिप्नोटाइज्म को खत्म सिर्फ आप अपने एटीट्यूड के साथ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं से शुरू करें, ताकि ये दुनिया जो जंगों के लिए हम लोग जंग कर रहे हैं, इस जंग को खत्म करें। हर इंसान को पूरा हक है कि वो दुनिया के किसी भी खित्ते में जाके रहे, अपनी फैमिली रेस करे और बेहतर काम करे। ये जो हम दरवाजे लगा देते हैं, स्टॉप साइन लगा देते हैं, ये क्या होता है कि हम अपने आप को कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी एक सर्टेन टाइम के लिए है, हम इस दुनिया में आए हैं, और इस दुनिया के अंदर एक टाइम तक हम इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। फिर हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, अल्लाह नोज दैट। वो हमारे क्रिएटर को पता है कि हमने इसके बाद कहाँ जाना है। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप ब्रीथ कर रहे हैं, एटलीस्ट जो आपको मिला है इसको का शुक्र अदा करें, इसमें सब्र करें। और जो लोग शाकिर होते हैं, जो लोग साबिर होते हैं, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास पीस ऑफ माइंड होता है और वो हमेशा रिच होते हैं। आप यकीन में, मालो दौलत से इंसान अमीर नहीं होता, रिश्तों से होता है, रिलेशनशिप से होता है। आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द आपसे मोहब्बत करने वाले कितने हैं, बनस्बत यह है कि आपके पास दौलत के अंबार हों, आपके पास बड़े बड़े घर हों, आपके पास हर चीज़ हो, लेकिन रिश्ते ना हों, तो फिर फ़ायदा क्या है? इंसान शहरों में, कस्बों में, गांव में इसलिए रहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, जंगल में नहीं रहता, क्योंकि जंगल में वो अकेला होता है। तो अपने आप को इस जंगल से दूर रखें, लोगों के साथ मिलाना रखें, मोहब्बत करना सीखें और मोहब्बत सिखाएं और मोहब्बत करें। अल्लाह बहुत बड़े बादशाह हैं। अल्लाह ताला जब अपनी रहमत बरसाते हैं तो वो शहरों पे, कस्बों पे, गांव पे भी अपनी रहमत देते हैं और वीरानों पे भी देते हैं, जंगलों में भी देते हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए बराबर हैं।
अल्लाह हिंदू के भी हैं, अल्लाह मुसलमान के भी हैं, अल्लाह क्रिश्चियन के भी हैं, अल्लाह यहूदी के भी हैं, अल्लाह हर जो अल्लाह को नहीं भी मानते, अल्लाह ताला उनको भी तमाम डिज़ायर, तमाम उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। अल्लाह पत्थर के अंदर कीड़े को खाना देते हैं। तो फिर हम क्यों दूर हैं? हम क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जंगें हो रही हैं, जो इस वक्त एस्केलेट कर रही हैं, जो बढ़ रही हैं आए दिन, जनाब मीडिया उसके अंदर और ज़्यादा जनाब तेल छिड़कता है। इस जंगों को ख़त्म करें। आपने अगर प्रोटेस्ट करना है, फूल लेके जाएं और खड़े हो जाएं कि यार ये फूल हैं, खुदा के लिए अमन की तरफ वापस आ जाओ। हमारा जो इसके अंदर जो वाकई अगर कोई किरदार अदा कर सकता है वो मीडिया कर सकता है, हमारे रैबर्स कर सकते हैं, हमारे लीडर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर लीडर ही हमें डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं और उस चक्कर में पूरी की पूरी एक कौम को दीवार के साथ लगा देते हैं, तो फिर ये सोचने का मुकाम है। तो मोहब्बत करें, सच बोलें और रिश्तों को निभाएं। जो आदमी दुनिया में कहीं पे भी जाके काम करना चाहता है, या कोई नया आने वाला यूरोप आना चाहता है, अमेरिका आना चाहता है, गल्फ जाना चाहता है, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी उनके बहन भाई जो उससे पहले गए हुए हैं, उनको उसकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसको आप कहें कि उसको आप डिस्करेज मत करें, क्योंकि कल भी आप भी आए थे, आपने भी तकलीफ़ें काटी थी। आपको अगर पाँव जमाने का मौका मिला है तो दूसरों के लिए भी रास्ता खोलें। याद करें कि आपका नसीब कोई नहीं ले सकता। आपका नॉलेज आप जितना देंगे, आप उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपके ख़जाने में ज़्यादा चीज़ें आएंगी। सोचने वाली बात है और इस पे सोचें। हम लोग टिकटॉक के ऊपर इश्यूज क्रिएट करते हैं, किसी को ब्लॉक करते हैं, किसी के साथ गलत बयानी करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को टारगेट करते हैं। इन चीज़ों से दूर रहें यार। ये चीज़ें सिर्फ एग्रेशन पैदा करती हैं, ये चीज़ें रिश्ते तोड़ती हैं। आप आए हैं सोशल मीडिया पे, आप इंजॉय करें, आप नॉलेज गेन करें, आप इंटरेक्ट करें, आप नए रिश्ते बनाएं, आप नॉलेज गेन करें, आप इंटरेक्ट करें, आप नए रिश्ते बनाएं। और एंड ऑफ द डे जो आदमी पॉजिटिव माइंड के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करता है वो बेनिफिशियल होता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको अच्छे दोस्त मिले, आपको अच्छे रास्ते मिले, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें? जब तक इस दुनिया में ब्रीथ कर रहे हैं, डिग्निटी के साथ रहें, रिस्पेक्ट के साथ रहें। ये चीज़ें सोचने वाली है। बातें तो बहुत सारी हम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें अपने दिल की बात ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं हमें जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो हम मोहब्बत का इजहार नहीं करते, तो क्या होता है, गाड़ी निकल जाती है और उसके बाद जनाब पूरी ज़िंदगी का एक रिग्रेट होता है, एक पछतावा होता है। काश मैं उस वक्त बोल जाता, काश मैं अपनी माँ को बताता कि फ़लाने घर चली जाओ, वो मुझे अच्छी लगती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इसलिए कहते होते हैं कि वक्त ज़ाया मत करें। एवरी सिंगल ब्रीदिंग, एवरी घड़ी की जो टिक टॉक है, ये आपकी ज़िंदगी कम होती जा रही है और आपको वापस इस दुनिया से वापस जाना है। तो क्यों ना मैं कभी कभी अपने दोस्तों से एक बात करता हूँ कि हम दिन में कितनी सांसें लेते हैं। अगर हम अपनी हर सांस में अल्लाह को याद करें, सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कलमा पढ़ें, तो क्या होगा, जब हम इस दुनिया से जा रहे होंगे तो ये हमारा तकिया कलाम बन जाएगा। और जब कोई चीज़ आपकी तकिया कलाम बन जाए, आपको पता है कि मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी की, मैंने 95 में सिगरेट छोड़े। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद कहीं पे मैं सिगरेट
पीते हुए किसी आदमी की तस्वीर देखता था या कोई भी जगह जहाँ सिगरेट होती थी, मैं उस चीज को बिल्कुल वाइप आउट कर देता था, उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखता था, उनको इग्नॉलेज नहीं करता था। जिस महफिल में सिगरेट पी जाती थी तो मैं वहां से साइड पे हो जाता था। तो उससे क्या हुआ, मेरे काफी सारे दोस्तों को पता चला कि यार मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो वो मेरे सामने नहीं पीते थे। तो क्या होता है, कभी कभी किसी बुराई से बचने का ये तरीका नहीं है कि आप जाके लोगों को डंडा लेके आप उनको ड्राइव करें। आप सिर्फ अपनी जो एटीट्यूड से उनको ये बावर करवा दें कि दिस इज नॉट गुड, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, बिकॉज वो ऐसी कोई भी चीज जो इंसान की सेहत खराब करे, उससे इंसान को दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, आजकल हम लोग गुलाम हैं किसके? एप्स के। सुबह सवेरे उठते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, टिकटॉक चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, गेमें भी हम कंप्यूटर पे खेलते हैं, बिजनेस भी हम भी कंप्यूटर पे करते हैं, हर चीज़ हमने अपनी कॉम्पैक्ट कर ली है। लेकिन हमने फिजिकली इंटरेक्शन को छोड़ दिया है, मैदानों में जाना छोड़ दिया है, लोगों से मिलना छोड़ दिया है, रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ दिया है। अब हम कहीं अपने ही घर में डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं तो सबके हाथ में फोन होता है, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे इमीडिएट रिश्ते होते हैं उनके साथ हम कांटेक्ट में नहीं होते। ये कनेक्शन मत तोड़ें, क्योंकि आप अकेले हो जाएंगे। और अकेला सिर्फ खुदा अच्छा है, क्योंकि वो मालिक है, वो अलमाइटी है, वो इस दुनिया का क्रिएटर है। उसने हमें मोहब्बत से पैदा किया है, इसीलिए हमें रिश्ते दिए हैं। इसी तरह माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, रिश्तेदार दिए हैं, लोग दिए। तो सोचें इसको, सच बोलें। आप यकीन माने, सच बड़ा मीठा होता है अगर लोगों को समझ आ जाए, और सच समझ आ जाता है। और जिस दिन आप अपने आप के साथ सच बोलेंगे, आप यकीन माने कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। और वो चेंज ये आएगा कि आप अपने आप से शर्मिंदा नहीं होंगे, आप के बारे में लोगों की राय अच्छी होगी। जब आप अपने आप के साथ सच बोलेंगे तो आप दुनिया के साथ कुछ सामने सच बोलेंगे। सच बोलना एक अच्छी आदत है। अपना ख्याल रखें। मैंने कहा ये लाइव करनी है और मैंने अपने बहन भाइयों के साथ करनी है। आपको अल्लाह ताला बहुत खुश रखें एंड शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।